Hello students, a very good morning all of you and welcome back in your political science. This is Neeraj Pandey, your political science mentor. And in the previous video we have already discussed about the main introduction of Cold War in live class. So today we are taking a new topic of the chapter, the Cold War era. The full name of this chapter is the Cold War era and non-aligned movement, especially in Indian, because India has followed the policy of non-alignment after the Second World War, which is started in 1939 to 1945. In the previous video, we have already discussed about there were two world wars in the whole world. The first is 1914 to 18. The duration of the first world war is 1914 to 18, and the second is 1939 to 1945. The main duration of the first world war near about is only 4 years, and the second is 1939 to 45, near about 6 years. And after the second world war, this is the new condition as started as the Cold War era. What is Cold War era? In the previous video we have already discussed about the meaning and the introduction of Cold Era. Students, do you know that after the Second World War there are two groups in the world? The first group is also known as the Allied group and the second is Axis group. What is Allied and what is Axis group? The first is Allied group. There are only 5 nations in this group, and on the other hand there are only 3 countries or nations are joint Axis group. Which states or nations are in Allied groups? USA, USSR, Britain and France. These countries were in Allied groups. And Germany, Italy and Japan. Germany, Italy and Japan were in Axis group. You remember always all 5 nations which is joined with Allied. Write the any 3 nations name which is joined Allied groups. तो Allied groups के कोई भी 3 nations पूछ सकता है कि भी वर्ल्ड वॉर के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद 2 ग्रुप्स बने, और 2 ग्रुप्स में एक अलाइड ग्रुप्स था और दूसरा था बेटा एक्सिस ग्रुप. अलाइड ग्रुप में 5 कंट्री थी, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान. लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो यूएसए था बेटा, ये यूएसए स्टार्टिंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हो रहा था. जापान ने क्या किया कि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया. व्हेन Japan's attack on the Pearl Harbor situated in USA, then USA was so angry and USA were joined the Second World War. इसके बाद USA ने Second World War को ज्वाइन कर लिया. बाद में क्या होता है बेटा कि ये कभी पूछा जाता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर आखिर में फिनिश कैसे हुआ, कि क्या कारण थे, व्हाट इज द मेन रीजन टू फिनिश द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. The main reason to finish the Second World War that atomic power, atomic जो बम थे उसको गिराया गया था, और वो गिराया गया था यूएसए के द्वारा. और कहाँ पे गिराया गया था? जापान में. तो जापान में क्या थी? There are only 2 famous cities located in Japan. The first is Hiroshima. And the second is Nagasaki. This is the famous cities of Japan. The time of Hiroshima 6 August 1945 और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945. अमेरिका के पास एक एटॉमिक बम है, और उस समय देखिएगा सुपर पावर, मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक सुपर पावर पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री थी, वो थी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यूएसए के पास एटॉमिक पावर थी. उसने उस एटॉमिक पावर को जापान की फेमस सिटी, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी. हिरोशिमा का उसने 6 अगस्त 1945 को बम गिरा दिया, और 9 अगस्त 1945 को उसने नागासाकी पर बम गिरा दिया. ये दोनों ही जो इवेंट्स हुई जो यूएसए के द्वारा जापान पर की गई,
इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल फिनिश हो गया, जो 6 वर्षों तक चला। फिर इसके बाद बारी आई कि भी ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी बिगिनस हो जाए, शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं रहा। लेकिन क्या होता है कि 1961 में एक ऐसी कंडीशन अपने आप उत्पन्न हो जाती है, आ जाती है कि भी कहा जाता है कि जनरेट हो गई कि 1961 में ऐसा लगा कि वर्ल्ड में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। वो क्या था? तो हमारा में बुक में एक टॉपिक दिया गया, उस पर लिखा है कि क्यूबा आइसलैंड नेशन, जिसका नाम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या होता है? तो देखिएगा, ये जो क्यूबन लिखा हुआ है ये क्यूबा वर्ड से निकला हुआ है। क्यूबा क्या है? कंट्री है, फेमस नेशन है क्यूबा, जैसे घाना है, क्यूबा है। तो क्यूबा क्या है? आइसलैंड नेशन है। और उस समय जो आयरलैंड का आप देखते होंगे, जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं और वर्ल्ड मैप को स्टडी करते हैं तो हमको एक आइसलैंड दिखाई देता है जो क्यूबा के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, मेन चीज़ आता है कि ये सब चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में है। अब ये पॉलिटिक्स जब बात करते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, तो देन योर आंसर इज स्ट्रगल फॉर पावर एज नोन एज अ पॉलिटिक्स। स्ट्रगल फॉर पावर एज नोन एज अ पॉलिटिक्स, कहने का मतलब कि संघर्ष किया जाता है किसको प्राप्त करने के लिए? पावर को प्राप्त करने के लिए, वही पॉलिटिक्स कहलाई जाती है। कहने का मतलब आज हम देखते हैं कि भाई जो भी आज वोट मांगते हैं, जो आज डेमोक्रेसी सिस्टम है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हमारे होते हैं, वो क्यों जाते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स में? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं पावर्स के लिए कि अगर वो कल को जीत जाएंगे तो कोई सीएम बनेगा, कोई पीएम बनेगा, कोई गवर्नर बनेगा, तो वो सब उनको क्या मिल जाती है? पावर मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो क्यूबा आइसलैंड है, उस समय इसने 1961 में पॉलिसी ऐसी चला दी कि वो अपने आप को एक सुपर पावर बनाना चाहता था। तो उसने क्या किया? एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यूएसए की यहाँ रख दी, अर्थात उसने यहाँ पे ठीक उसकी सामने, यूएसए के सामने सॉरी, अपनी मिसाइलें रख दी। अब ये सब देख के लगा कि भाई अब थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिसाइलें थी, वो भी एटॉमिक मिसाइलें थी। तो उस कंडीशन में यूएसए की जो उस समय प्रेसिडेंट, याद रखिएगा 1961 की ये इवेंट है और ये मिसाइलें रखी गई थी 1962 में। और ये टॉपिक का नाम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि जो क्यूबा थी उसके द्वारा मिसाइलें वहाँ पे रखी गई अमेरिका को हराने के लिए। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। John F. Kennedy was the president of USA at that time. और क्यूबा के जो उस समय प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे बेटा फिडेल कास्ट्रो। दोनों प्रेसिडेंट के नेम याद रखेंगे। 1962 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और जो क्यूबा था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे फिडेल कास्ट्रो। तो उस समय जॉन एफ कैनेडी जो भी एक सुपर पावर नेशन के प्रेसिडेंट थे, क्या वो इसको बर्दाश्त कर लेते? कभी नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? क्यूबा को एक वार्निंग दी और ये कहा कि आप अपनी मिसाइलें हटा लीजिए, नहीं तो फिर इसका खामियाजा भुगतेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। अब क्यूबा ने सोचा कि एक ये सुपर पावर, और सुपर पावर के बाद अगर अमेरिका ने वास्तव में जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने एटॉमिक बम गिराए, अगर क्यूबा पर भी वो गिरा देगा तो भी क्यूबा तो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इसी डर से क्या हुआ कि क्यूबा ने अपनी मिसाइलें वहाँ से हटा दी और उस प्रकार से जो थर्ड वर्ल्ड वॉर था वो होने से बच गया। और स्पेशली अगर जॉन एफ कैनेडी उस समय थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग कर देते, अगर क्यूबा पे वो मिसाइलें या एटॉमिक बम गिरा देते जस्ट लाइक हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होता। देखिएगा, जैसे कि टॉपिक का नाम ही है द कोल्ड वॉर एरा। ये हमारी कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है अब हम पास्ट की चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम इससे में समकालीन, जिसको हमने कहा था कि आजकल का समय, जो आजकल का दौर था, ये 1962 की बात है, तो कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसीलिए हम इसको कंटेम्पोरेरी पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बेटा हम पढ़ेंगे कि इसका जो कोल्ड वॉर का एरा था ये कभी भी आमने सामने लड़ाई नहीं हुई। जब देखिएगा दो ग्रुप्स जो बने हुए थे, एक एलाइड था, दूसरा एक्सिस था। तो एलाइड ग्रुप्स में से यूएसए ने जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया तो उस समय वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया। तो ये पूरा एक्सिस ग्रुप हार गया और वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया। यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस, देखिएगा उस समय दो आइडियोलॉजी थी,
एक होता है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, और दूसरा था कम्युनिस्ट। व्हाट इज कैपिटलिज्म? तो हमने ये कहा था क्योंकि जो यूएसए था वहाँ पे एक कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी, और उस कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई जहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, जो जैसे चाहे वैसे अपनी ग्रोथ कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, वहाँ पे कोई इंटरफेयर गवर्नमेंट और स्टेट का नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म एंड यूएसए इज फॉलो कैपिटलिज्म पॉलिसी इन द वर्ल्ड। फिर कम्युनिस्ट का मतलब क्या है, यहाँ भी इकोनॉमिक कंडीशन थी। अब ये जो कम्युनिस्ट था वो यूएसएसआर के द्वारा चल रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कैपिटलिज्म हो रहा था, कैपिटलाइज हो रहा था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो रहा था, वो सब एक इंटरफेयर हो रहा था और बॉन्ड किया गया था, वो एक स्टेट के माध्यम से किया गया था, उसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट। तो यहाँ पे अलाइड ग्रुप से जीत गया, और बाद में ब्रिटेन और फ्रांस का भी इसमें इतना रोल इम्पोर्टेंस नहीं रहा, तो दो सुपर पावर बन गई। तो एक सुपर पावर थी उस समय यूएसए, और सेकेंड थी यूएसएसआर। Thanks for watching and see you in next video with a new topic with the chapter number 1, the Cold War era and non-aligned movement. Thanks for watching.